Very good morning, dear student. Now, after the exam, today we will start our the online class. So, in today's class, we are going to start the new chapter, that is air and water. So, dear student, as you know that this air and water are the important factor for the all the living organisms, either it is plants or animals. यानी air और water जो है हमारे life के लिए काफ़ी important है. Through the air, because air, when we breathe in or we respire, we use water oxygen. So oxygen we are getting from water air. So the air, the blanket of air surround us is known as water atmosphere. And water as you know that it is also a main part of our life, and many things we are getting from the water. Okay, so water is also help in maintain the body temperature of our body. It is also help in a digestion of food and circulation of food. So now see in the textbook, everybody take your textbook. All living organisms need air and water to live. We need air to breathe and water to ड्रिंक. मीन्स हमें जो है एयर की ज़रूरत होती है और वाटर की ज़रूरत होती है. सो एयर की जो है हमें वी नीड टू एयर टू ब्रीथ एंड वाटर टू नीड वाटर ड्रिंक. So now see these activities. Look at the pictures below and write the W for the children using water and A for the children using air in the boxes. मीन्स आपको द एक्टिविटीज़ दी हुई है, उसमें से आपको जहाँ पे वाटर का यूज़ हो रहा है वहाँ पे आप W लिखना है, और जहाँ पे एयर का यूज़ हो रहा है तो यू कैन राइट इट वाटर A. So now is the first one. This boy gives water to the plant. So here the boy use water, this water, so we can write it here W. This the balloon is inflated by the air, so means air is used here, so we can write it here A. Then this girl drink water, so here we can write it this W, and air is used in a to fill in a tube. Okay, so here we write it this A. Okay, now see next air. We are going to discuss more about the air. Air is present everywhere. We cannot see air, but we can feel it when it moves. मीन्स एयर जो है आपके सब जगह है, आपके आसपास में सब जगह एयर है, लेकिन एयर को हम देख नहीं सकते. वी कैन नॉट सी द एयर बट वी कैन फील द इफेक्ट प्रोड्यूस बाय द एयर. मीन्स वेन एवर जैसे हवा चलती है तो हवा के कारण जो है ना पेड़ के पत्ते हिलते हैं या फिर दूसरी कोई ना चीज़ें मूव करती है, तो वहाँ से हमें पता चल सकता है कि एयर चल रही है या हवा है, लेकिन हवा को हम एयर को देख नहीं सकते. The air is a mixture of gases. Now we know that this air is a mixture of gases. Means in this air or in the atmosphere there are the many different type of gases like nitrogen, oxygen, hydrogen, carbon dioxide, and many more is there. It contains about the 78% nitrogen, 21% oxygen, and 1% of other gases like carbon dioxide, argon, helium, hydrogen, and ozone. It also contains the water vapor, dust, and smoke. So मीन्स पूरा जो एटमोसफियर है या एयर जो है इज़ ए डिफरेंट मिक्सचर्स ऑफ डिफरेंट गैसेज. तो इसमें मोस्टली जो सबसे मोस्ट परसेंटेज है, सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है दैट इज़ नाइट्रोजन. एंड हाउ मच द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, दैट इज़ 78%. उसके बाद देन नेक्स्ट दिस ऑक्सीजन हाउ मच परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एटमोसफियर और इन एयर, दैट इज़ 21%. देन 1% other gases like this carbon dioxide, CO2, argon, helium, hydrogen, and ozone, and water vapor, dust, and smoke. So these are the combination of water, the different components in air. Now composition of air means what are the main things or what are the main parts or elements of this air. So air first we discuss already we discuss here that 78%, most of the percent of air is nitrogen. So first we are talking about the nitrogen. Nitrogen is not used by the living beings directly from the air. Plants gets this nitrogen from the soil, and the animals get nitrogen from the plants or meat.
So we can say that this nitrogen is not directly used by the animals and plant. Okay, so this can be used in a different forms in the form of nitrate and nitrite. Means 78% आपके एटमोसफियर में, लेकिन फिर भी this the use percentage directly plant cannot used directly from the air. Next, now see this nitrogen does not support the burning. Its absence can make even a smaller fire uncontrollable. Then means this nitrogen does not support burning. ये तो बर्निंग में हेल्प नहीं करती है. कोई भी चीज़ जब भी बर्न करती है तो उसके लिए कौन हेल्प करता है? ऑक्सीजन. सो ऑक्सीजन इज़ हेल्पफुल फॉर वाटर बर्निंग. its absence can make even a small fire uncontrollable. यानी इसके एब्सेंस में जो है एक छोटा सा फायर भी जो है वो अनकंट्रोलेबल हो सकता है. नेक्स्ट जो है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑल द लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन इज़ ऑल्सो नीडेड फॉर द बर्निंग. इट इज़ अ सपोर्टर ऑफ बर्निंग. यानी जब भी बर्निंग की प्रोसेस होती है तो देर विल बी हैविंग दिस ऑक्सीजन. ऑक्सीजन होना नेसेसरी है. Other gases like carbon dioxide is used by the plant for the photosynthesis. As we know that this for the plant this carbon dioxide is very useful because in the process of photosynthesis the green plant use carbon dioxide, sunlight, water and in the presence of a green color pigment that is called chlorophyll, green plants make their own food. That's why this green plant is known as what? Autotrophs. Auto means self, means they can prepare their food by themselves. It is also used in the fire extinguishers and this carbon dioxide is used in the fire extinguisher. Fire extinguishers आपने देखा होगा just like you see in hospitals, schools, theater, पेट्रोल पंप. तो वहाँ पे क्या होता है, ये फायर एक्सटिंग्विशर्स जो होते हैं मीन्स जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं अपन फायर के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं. तो इनके अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज़ होती है. ठीक है. आर्गन इज़ यूज इन द मेकिंग बल्ब्स एंड फ्लोरोसेंट ट्यूब्स. फिर जो आर्गन यूज़ होता है दिस आर्गन इज़ द इनएक्टिव गैस और इनर्ट गैस विच इज़ यूज इन मेकिंग अ बल्ब्स. जो बल्ब्स आप देख रहे हो घर में जो बल्ब्स लगे होते हैं बल्ब्स के अंदर जो है उन बल्ब्स में क्या कौन सी गैस होती है? that is a argon gas. Okay, and this also used in a fluorescent tubes. Now next, atmosphere means what is the atmosphere? So atmosphere means the earth is surrounded by a blanket of air is called what? Atmosphere means the layer of air in our surroundings that is called what? Atmosphere. So you can say that atmosphere means the earth is surrounded by a blanket of air that is called atmosphere. The atmosphere is held by the earth gravity. It can be divided into the 5 different layers that shown below. So this is the systematic diagram of representing the different the layers of atmosphere. So first layer from ground, earth ground, first layer is what? Troposphere. यानी कि अर्थ की तरफ से सबसे पहली जो लेयर आती है जब व्हेन वी गो अपवर्ड डायरेक्शन, ट्रोपोस्फीयर, देन स्ट्रेटोस्फीयर, then mesosphere, then a thermosphere, and last one is a exosphere. So there are the different 5 layers of the atmosphere, and these are depends on the different range of a height or a distance from the earth. Okay, so now see this first we discuss about what this is troposphere. So now see this troposphere means what are the characteristics of troposphere. Troposphere is the first layer above the earth's surface. All changes in their weather occur in this layer. मीन्स ये आप अर्थ से फर्स्ट लेयर है और इसमें सभी जो वेदर से रिलेटेड क्या होता है चेंजेस होते हैं, जो मौसम से संबंधित जो फिनोमिना होती है दिस आर हैपन इन वाटर वेयर इन ट्रोपोस्फियर. Then after the second layer that is called stratosphere. Second layer is stratosphere. Stratosphere is the second layer. The many aircraft fly in this layer. यानी जो एरोप्लेन और जो एयरक्राफ्ट है एरोप्लेन है वो सब जो फ्लाई करते हैं वो कौन से सेकेंड लेयर में, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रेटोस्फीयर. Ozone layer that absorb the harmful ultraviolet rays from the sun is present in this layer. Or ozone layer, you know that ozone layer means it's a protective layer which protect us from against the ultraviolet rays coming from the sun.
सन से जो अल्ट्रा वायलेट रेज जो आती है, हार्मफुल रेडिएशंस आती है, उनको ये क्या करता है, अर्थ पर आने से रोकता है। और इनके जो जब ये हमारे बॉडी से एक्सपोज होती है तो वी आर सफरिंग फ्रॉम द मैनी स्किन डिजीज़ लाइक स्किन कैंसर एंड अदर थिंग्स। सो ये हार्मफुल रेडिएशंस है। इन हार्मफुल रेडिएशंस को कौन ब्लॉक करता है? दैट इज़ दिस ओजोन लेयर, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज, एंड दिस ओजोन लेयर आर वेयर इट इज़ इन अ स्ट्रेटोस्फीयर। नाउ दिस थर्ड layer is a mesosphere. Mesosphere is the third layer. The meteoroids burn out in this layer so that they do not crash into the earth's surface. Meteoroids are the small rocks that moves in the space. ये थर्ड लेयर है। ये किसके बाद आती है? ये जो है वो आपके स्ट्रेटोस्फीयर के बाद आती है। उसमें क्या होता है, जितने भी जो मेटेरॉइड्स होते हैं, मीन्स जो भी शूटिंग स्टार आप देखते हो जो बर्न करते हुए वो पार्ट है, तो वो सब जो है वो इसी में बर्न कर लेते हैं ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑफ एयर, और वो अर्थ तक फिर पहुँच नहीं पाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट दिस फोर्थ वन लेयर, दैट इज़ थर्मोस्फीयर. थर्मोस्फीयर इज़ द फोर्थ लेयर. द स्पेस शटल्स ऑर्बिट्स इन दिस लेयर. यानी जो भी स्पेस में अपन जो स्पेस शटल्स सेंड करते हैं, तो वो जो है वो कौन से लेयर में होते हैं? वो थर्मोस्फीयर लेयर में जो है वो सेटल्ड होते हैं. स्पेस शटल्स दे आर सेटल्स इन दिस ऑर्बिट. देन लास्ट वन दैट इज़ एक्सोस्फीयर. दैट इज़ ये जो है सबसे ऊपर की लेयर है, और बिल्कुल ये आउटर मोस्ट लेयर आप कह सकते हो जो स्पेस में है. सो एक्सोस्फीयर इज़ द फिफ्थ लेयर. द एयर इन दिस लेयर इज़ ए वेरी थिन. और यहाँ पे क्या होता है, एयर काफ़ी थिन हो जाता है. यहाँ पे मीन्स एयर की क्वांटिटी काफ़ी कम हो जाती है, और ये सबसे लास्ट वाली लेयर है. तो सबसे बाहर वाली लेयर, आउटर लेयर पूछे आपको एटमॉस्फेयर की, तो दैट इज़ एक्सोस्फीयर. एंड सबसे इनर लेयर है या फर्स्ट लेयर है, दैट इज़ ट्रोपोस्फीयर. नाउ कम्स टू नेक्स्ट. So now next see this atmosphere. The main characteristics are usefulness of what? Atmosphere. It protect the earth from the becoming too hot by preventing the entry of a large part of the sunlight from the reaching to the earth. Means ये जो एटमॉस्फेयर एक तरह से क्या है कि अपना प्रोटेक्टिव लेयर है, जो सन से आने वाली रेज को क्या करता है, आने से हमें बचाता है, और सन की लाइट से अर्थ को गर्म होने से बचाता है. तो एटमॉस्फेयर के कारण ही जो हमारा क्लाइमेट है इतना हॉट नहीं है. अदरवाइज़ यदि एटमॉस्फेयर नहीं होता तो अर्थ का जो क्लाइमेट है काफ़ी हॉट होता, गर्म होता. ठीक है. इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज. हमने पहले भी जो स्ट्रेटोस्फीयर में पढ़ा था कि उसमें ओजोन लेयर होती है, तो ओजोन लेयर दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज. ये अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है वो काफ़ी हार्मफुल होती है. तो ये जो प्रोटेक्ट हमें करती है, इसको अर्थ पे आने से कौन रोकता है? ओजोन लेयर. और ओजोन लेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर में है, और वो भी कहाँ पे है? वो एटमॉस्फेयर का पार्ट है. इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द मेटेरॉइड्स. यानी कि जो भी जो पार्ट होते हैं या हैवी रॉक पार्ट होते हैं, उनको जो है वो अर्थ तक आने से रोकता है. ठीक है. ए मेटेरॉइड कैन मेक ए होल और क्रैटर्स इन द ग्राउंड इफ़ इट्स हीट. तो आपने देखा होगा काफ़ी टाइम न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में ये आता है कि ये पार्ट जो है वो ना स्पेस में टूट के अर्थ की तरफ आ रहा है, तो वो मेटेरॉइड्स होते हैं. तो लेकिन ये एटमॉस्फेयर क्या करता है कि एटमॉस्फेयर में एयर के कारण, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर, ड्यू टू द फ्रिक्शंस बिटवीन दिस मेटेरॉइड्स एंड दिस एयर, वो वहीं पे ना बर्न कर जाता है, और अर्थ पर आने से पहले ही जो पूरा वो जल के समाप्त हो जाता है फ्रिक्शन के कारण. ओके. तो ये भी जो है वो प्रोटेक्ट हमें कौन कर रहा है? एटमॉस्फेयर. सो दिस आर द इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ एटमॉस्फेयर, और यूजफुलनेस और एडवांटेज ऑफ एटमॉस्फेयर फॉर अर्थ. नाउ नेक्स्ट टुडे वी डिस्कस द प्रॉपर्टी ऑफ एयर. मीन्स व्हाट आर द मेन प्रॉपर्टी ऑफ एयर. सो one thing we already know that air is a material things. You know the material things means the things which have a mass and occupy the space. तो उसको मैटर कहते हैं. तो एयर भी क्या है? एक मटेरियल थिंग्स है. सो एयर हैज़ द थ्री प्रॉपर्टीज़. फर्स्ट वन, इट इज़ ऑक्यूपाइज द स्पेस. जैसे आपने देखा हो एक बैलून है, उस बैलून को आप अपने जेब में डाल के रख सकते हो, पॉकेट में रख सकते हो. लेकिन जब उसको आप उसमें हवा भरोगे, उसको पंप की हेल्प से आप उसको बैलून को फुलाओगे, तो वो उसका साइज़ जो है वो क्या होगा? बढ़ जाएगा, और उसको फिर इट नीडेड सम स्पेस. सो एयर ऑक्यूपाई द स्पेस. एयर इट हैज़ द वेट, और एयर में वेट भी होता है, उसका बार भी होता है. जैसे लाइक आप एक फुटबॉल है,
उस फुटबॉल को, जो एम्प्टी फुटबॉल, खाली फुटबॉल है, उसका आप वेट करो। देन उसके बाद उसमें पंप से आप हवा भरो, उसके बाद यदि आप उसका वेट करते हैं तो उसके वेट में चेंज आता है। इट मीन्स क्या है, दिस एयर हैज़ ऑल्सो वेट इन इट, मीन्स इसमें बार भी होता है और ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है। एंड थर्ड द मेन प्रॉपर्टी ऑफ एयर इज़ दैट बिकॉज एयर इज़ ए मटेरियल थिंग्स सो इट एक्सर्ट द प्रेशर। ओके, तो ये क्या करता है, एयर का जो है वो प्रेशर भी एग्जिट करता है। इसका भी बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है, आप जस्ट लाइक आपने देखा होगा, इफ़ यू कंटिन्यू यूज़ द फिल द एयर इन साइकिल ट्यूब, तो क्या होता है, फाइनली वो साइकिल ट्यूब काफ़ी हवा भरने के कारण ब्रस्ट हो जाता है। ये देन अब बैलून को आप जैसे कंटिन्यू फुलाते जाओ, हवा भरते जाओगे, तो उसमें क्या होगा, एयर के कारण उसकी वॉल पे प्रेशर होगा और फाइनली वो ब्रस्ट कर जाएगा। सो दिस शोज दैट दिस एयर इज ऑल्सो exert pressure. Okay, so for today's I think it's enough. Then tomorrow in the next class we discuss the next point of this chapter. Okay, thank you, have a nice day. If you have any type of doubt, then you can ask me through the WhatsApp message. Have a nice day. Thank you.